Hind students, we are going to talk about the process of financial planning. In the process of financial planning, the first thing which we have to do, we need to prepare a sales forecast. So the first one is preparation of sales forecast, as you can see here. Yes. Second is estimate of the sales. Sales forecast you have done, okay, this much we would be getting it. Like in the month of February, our sales would be this much. Correct? Like I said, suppose we are dealing in air conditioner. So in the month of July, we would be selling 500 units of AC. Right? This will come under the preparation of a sales forecast. Now, estimates of the sales. How much you will be able to earn from your sales, or how much would be the price, how much would be the revenue which you will generate from the sales. Then comes the financial statement are prepared. Third, financial statements are prepared. Have you done same? Third point, rectified. Financial statements are prepared. What you have written, I can see that. Huh? E. लेते जाओ. भूमिका है, देव है, सरगम है, रौनक है. Which point you have written? Same. You? नहीं, वो ठीक नहीं, काट दो. नेक्स्ट. I'm explaining. Wait. I will explain it. Don't worry. First, you make the process, then I will explain each point. Which one? Preparation of a sales forecast. Estimates of the sales. Depend upon. Okay. First, you write these headings, then I will explain it. Don't worry. Preparation of a sales forecast is the first point. Second, estimates of the sales. Third, financial statements are prepared. Fourth, expected profits during the periods are estimated. Next, estimation of the requirement for external funds. How much external fund would be needed? And then cash budget is prepared, or cash budgets are made. Understood it? Okay. Now, suppose a company is making a financial plan for the next 5 years. This you wanted to know. Suppose it is for 1 year. Then what? This was your question. Example. It is an example. It may be for 1 year, it may be for 3 years, it may be for 10 years. Correct? So it is in this example, it is being talked that suppose we are making a financial plan for 5 years. Then the first thing which you have to do, that we will prepare a sales forecast. So this is the beginning of it. है ना? कोई भी चीज़ का जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास में पैसे कहाँ से आएंगे.
है ना, तब हमें खर्च प्लान करना चाहिए। ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है जो हमारे घरों में भी यूज होता है ना। तो हटा दो सामने से। इजंट इट, आप देखो घर में भी जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, शादी विवाह या किसी भी चीज का फाइनेंशियल प्लानिंग करते, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास में पैसे कितने हैं, हम कितना खर्च कर सकते हैं, है ना, तब हम खर्च को प्लान करते हैं। और जो एक मॉडर्न तरीका या आप कह लो एक दूसरा तरीका है जिसमें हम पहले खर्च को प्लान करते हैं कि हमें कितना खर्च करना, फिर हम सोर्सेस को ढूंढते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है प्लानिंग के लिए। तो सबसे पहले सेल्स फोरकास्ट प्लान करो, and then it will start with an estimate of the sales which are likely to happen in the next 5 years. सेल्स फोरकास्ट में हमने क्या प्लान किया, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, who will tell me? लगभग एक ही जैसा बात हम बोल रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अ सेल्स फोरकास्ट, और दूसरे में बोल रहे हैं एस्टिमेट ऑफ द सेल्स। हाँ बोलो बोलो सरगम। और कोई तुम बोलो, शानक क्या बोल रहे थे? देव, you want to say something? भूमिका, दोनों एक जैसा लग रहा है ना। अगर कंफ्यूजन है तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा। बोलो हाँ एक जैसा लग रहा है तो हम ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। हाँ, the financial planning, what is written in the book, financial planning usually begins with the preparation of a sales forecast. Yes, no? Sales forecast means what? Making an estimated table in which you are writing that in this year I would be having this much sales. In this month I would be having this much sales. Correct? The second line it is written, it will start with an estimates of the sales which are likely to happen in the next 5 years. तो सेल्स फोरकास्ट हम करेंगे कैसे? हाँ, एक स्टैटिस्टिक्स में एक टेक्निक है जिसको हम इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। तो दैट टेक्निक वुड बी यूज्ड हियर, and in that technique we will be using our estimate also, है। जैसे कोई कोई सीजन ऐसा होता है जिस समय हमारे प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड होता होगा, तो ये सब मिला करके हम अब सेल्स का एस्टिमेट बनाएंगे, है ना। ऐसे समझे अगर आप। कि हमने सेल्स फोरकास्ट कर लिया कि जनवरी में हमारा सेल्स जो है वो 300 यूनिट्स होगा, इसमें 400 यूनिट्स होगा, इसमें 500, राइट। अब इससे पूरा का पूरा सेल्स कितना जनरेट होगा, एक में हमने यूनिट तय किया और दूसरे में उससे जो रेवेन्यू अर्न होगी वो हमने तय करना। अब क्लियर है ये बात? ये दो चीजें हो गई। फिर बेस्ड ऑन दीज मीन्स दिस फोरकास्ट, बेस्ड ऑन दिस रेवेन्यू विच यू हैव रिटन हियर, दूसरे कॉलम में आपने क्या किया, अमाउंट लिखा कि 300 से हमें कितना रुपया आएगा, 400 से हमें कितना रुपया आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बता, ये 300 ही है लेकिन ये वैरी कर सकता है, क्योंकि
क्योंकि एमआरपी हमेशा एक जैसा होगा जरूरी नहीं है, डिमांड के हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट करता है, उस प्राइस फ्लक्चुएशन को भी हमें यहाँ कंसीडर करना है। क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे जैसे फ्रिज है, सुनाई नहीं दे रहा है। फ्रिज जो है वो गर्मी के टाइम में ज़्यादा बिकेगा और जाड़े के दिन में हमें डिस्काउंट पे ऑफ करके बेचना पड़ता है। तो सेल्स यूनिट एक अलग चीज है और सेल्स से जो रेवेन्यू हो रही है वो एक अलग चीज है। क्लियर हो रही बात? तो इन दोनों को हमने कर लिया। अब इन दोनों के बेसिस पर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? इसी में हमें कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल बनाना है। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने पूरा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट यूजुअली हम पास्ट का बनाते हैं, बट यहाँ हम जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं ये फ्यूचर का है, प्लानिंग है। ये समझ आ रही मेरी बात ना? जैसे आप एक तो फाइनल अकाउंट बनाते हैं जो पास्ट इवेंट का होता है। आज अगर हम बना रहे हैं तो ये पिछले महीने तक का होगा, है ना? लेकिन अभी हम जो फाइनेंशियल प्लानिंग में करेंगे, दिस विल बी ऑफ द फ्यूचर इवेंट। गेटिंग इट? तो हमने ये बना। अच्छा, ये बनाते समय में ध्यान क्या रखना है, इसको अंडरलाइन कर लो। कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। डन? Then the next one is expected profit during the period are estimated. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया, माने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया, बैलेंस शीट भी बन गई। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। यस? ना इस बन जाने से क्या होगा? सो दैट एन आइडिया कैन बी मेड ऑफ हाउ मच ऑफ द फंड रिक्वायरमेंट कैन बी मेड internally and how much we have to take from the external funds. This is the second one. That is why I said you that estimation of the requirement for external funds should be calculated. Is this clear now? दोनों point clear हो गया? Next, now you can make the cash budget. एक्सटर्नल फंड्स कितना चाहिए, इंटरनल फंड तुम्हारे पास में कितना है, डिविडेंड पे करने के बाद में रिटेन्ड अर्निंग कितना है, ये मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है? कैश बजट बना लेना है। अब कैश बजट बन गया माने फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, राइट? कैश बजट, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर ना? कैश अकाउंट सबको पता है। कैश अकाउंट फिर क्या लिखते हो? इधर सारा पेमेंट लिखते हैं, ये बनाते हैं ना। अगर हम इसको ये सब रिसीव पेमेंट, इसको डेट कॉलम भी होता है। डेट कॉलम किसका होता है? पास्ट का। अगर हम इसी को कन्वर्ट कर दें फ्यूचर में कि आने वाले समय में, जैसे कैश अकाउंट फॉर द बनाते हैं ना ऐसे, अगर हम इसको कर दें कैश अकाउंट फॉर द कमिंग ईयर, देन अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड बजट। बस यही डिफरेंस है। So all the receipts you will write here and all the payment you will write this one. ये सब हमारा रिसिप्ट होगा, ये सब हमारा पेमेंट होगा। तो कैश बजट बन गया माने हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। तो कैश बजट सुनाई नहीं दिया। हाँ, फिर से बोलते रहे। कैश अकाउंट हमें बनाना आता है, क्लास 11 में हम सब लोगों ने सीखा है। तो हम डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? रिसीप्ट्स, क्रेडिट में पेमेंट, बट यूजुअली इट इज ऑफ द पास्ट इवेंट, पिछले साल का या जो समय बीत गया है उसका होता है।
बट अगर हम इसी कैश अकाउंट को फ्यूचर के लिए बना लें, then it will be termed as cash budget. Now it is clear? Yes, sir. And this is the process in 6 headings. Now can we move towards the importance of financial planning? Whenever we are going to write about the financial planning, and especially the importance, it is very, very essential to write at least this one sentence. The importance of financial planning can be explained as follows. Without writing this statement, we will not write the heading. Yes, no, true. Online students, please speak. Yes, sir. हाँ, Yes, मुझे तुम लोग दिख नहीं रहे हो ना, तो बोलो हाँ ना। और इसके पहले क्या लिख सकते हैं? आपके बुक से ही हमने ये वर्ड्स लिए हैं, देखो जरा, पढ़ो पढ़ो। रौनक, फाइनेंशियल प्लानिंग इज बस इतना लिख करके अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग लिख सकते हैं। करेक्ट? फर्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। शायद हेडिंग वाइज नहीं लिखा हुआ है, ये आपको करना होगा। हेल्प्स इन फोरकास्टिंग. If you have done financial planning, means you have prepared the cash budget. So if your cash budget is prepared, are you not aware about the forecast that this much sales you will get, this much expenditure you will have to make? So all the forecasts are clear or not? Yes, sir. हाँ, बोलते रहो यस नो, तभी ना पता चलेगा। Okay. So the objective of financial planning is to prepare for, to face the future. To prepare for, to face the future. This is the key word which you should highlight in this heading. Mila? Second point, it helps in avoiding business shocks and surprises. Shocks and surprises. I am sure many of you are from the business family. Who is here? Okay. So, right now, if you talk to your parents, especially your father, what they say? The financial position is good or bad? Naturally. Reason, there is this pandemic has come as a surprise. No one was expecting this. Right? So in business, it is bound to face some of the surprises. You are bound. There are certain shocks also. Like you expected that your supplier will send you the raw materials at the right time, but he did not send. And you have already taken money from your customer that okay, I will supply you this much quantity of production at this date. Now if you don't have the raw materials, how will you produce? Will you be able to produce? No. So you cannot supply them. If you don't supply at the right time, will they pay you? And accordingly you have planned other things also.
भाई तुमने अपने सेल्स फोरकास्ट में लिख लिया होगा ना कि हमारा इतना बिकेगा, लेकिन सप्लाई नहीं आया, शॉक्स हो गया है, तो अभी सब डिस्टर्ब हो गया कि नहीं। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपने पहले से प्लान किया हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे। प्लान कोई एक ही तो नहीं होता होगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसे रखते हैं ना हम, प्लान फर्स्ट, प्लान टू। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो ये करेंगे। तो जब हम फोरकास्ट करते हैं तो हम उसमें ऐसे शॉक्स, ऐसे सरप्राइजेस को भी फोरकास्ट करके चलते हैं। समझ आ रही बात ना। जैसे आप देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आप रखते हो कि नहीं रखते हो? वो क्या है? वो एक तरह के, ऐसा हो सकता है कि अगर हमने 5,000 लोगों को उधार सामान बेचा है, तो उस 5,000 में से 500 लोग ऐसे होंगे जो पैसा नहीं देंगे। होता है कि नहीं ऐसा? But when you are doing the financial plan, then you keep all these things into your mind. So you generate or you create the sources also accordingly. कि अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो ये करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगा तो ये करेंगे। Third, it helps in coordinating various business functions. Though you start with the sales, but if you have forecast for sales, then would you not plan accordingly your production also? बोलो। एक चीज हमने प्लान किया, शुरू कहाँ से किया? सेल्स फोरकास्ट से एस्टिमेट किया सेल्स को, बट अकॉर्डिंगली द अदर फंक्शंस ऑफ द बिजनेस आल्सो वुड बी प्लान। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल योर ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमें पता है कि मेरा 50,000 यूनिट प्रोड्यूस होगा, तो उसके हिसाब से हमें ट्रांसपोर्टेशन भी तो अरेंज करना होगा, उसी के हिसाब से हमें वेयर हाउसिंग भी अरेंज करना होगा, वैसे ही हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग आपके बाकी सभी प्लान का बेस है। समझ रहे बात ना? So other points we'll discuss later on. We cannot extend the time because other class will take place. Okay. So did you understand, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You Yes, can sir. write aha moment today's Yes, sir. class. What is your take home today? सबसे ज्यादा क्या समझ आया? चैट में लिख सकते, आप लोग ऐसे ही बोलते। सर आप एस्टिमेशन और फोरकास्ट का जो डिफरेंस था वापस से बता सकते हैं? हाँ सर जो पहले का जो दो पॉइंट था, हाँ, एस्टिमेशन उसमें और फोरकास्ट। एक में हम यूनिट यानी क्वांटिटी फोरकास्ट करते हैं, दूसरे में हम रेवेन्यू, उससे हमें कितना पैसा आएगा उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको एस्टिमेट करते हैं। नट सेल में ये। अच्छा सर। सर यूनिट्स हम लोग किस में चेक कर रहे हैं, हाँ फोरकास्ट? नहीं, तुम्हारा यूनिट्स हम लोग आवाज किस में चेक कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा विष्णु, चैट में लिख के पूछो। टुडे इज आहा मोमेंट। सर हम लोग यूनिट किस में चेक कर रहे हैं? यूनिट पहले वाले में, सेल्स फोरकास्ट में। एस्टिमेट सेल्स, सेल्स अच्छा माने जो फाइनल अकाउंट में हम लिखते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, उसकी बात कर रहे हैं। और जब हम सेल्स अच्छा, फोरकास्ट ठीक लिखते है हैं, उसका मतलब हम यूनिट में बात कर रहे हैं। करेक्ट? अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।